Hello everyone. I am Anshika Yadav of class BSc 3rd year 5th semester of Isabella Thoban College. My college roll number is 225048. My university roll number is 22103840100051. Today I am here to give my presentation of discrete mathematics on the topic finite state automata, transition diagram, types of finite state automata, that is NDFA and DFA, and their conversion. So firstly, we will see what is finite state machine. So here is the definition of finite state machine, which states a finite state machine M consists of a finite set I of input symbols, a finite set S of internal states, a finite set O of output symbols, an initial state S0 in S such that S0 belongs to capital S, an output function G such that S into I gives O, a transition function F such that S into I gives S. The machine with 6 tuple M. Here M is representation of finite state machine. So the machine with 6 tuples M is equal to a set of I, S, O, S0, F, G. Here I, S, O, S0, F, G, we have already stated what these functions are. So here comes my topic, finite state automation. So basically finite state automation is a automation machine with 5 tuples. A finite state automation can be represented by 5 tuples Q, sigma, delta, Q naught, F. When Q is a finite non-empty set of states, sigma is a finite non-empty set of input called input alphabet, delta is a function which map Q into sigma into Q and is called transition function. F is a subset of Q is the set of final state. So now we will see what the transition diagrams are. The transition diagram is a finite labeled graph in which each vertex represents a state and the edges are labeled as input or output. Here we can see the transition diagram, and here is the table of this transition diagram. Here we can see that Q0 and Q1 are the two states, और जब Q0 को हम लोग 0 इनपुट देते हैं तो हमें Q0 मिल रहा है, और जब हम Q0 में अगर 1 इनपुट दे रहे हैं तो हमें Q1 मिल रहा है. ये हम डायग्राम से भी देख सकते हैं और टेबल से भी देख सकते हैं. और जब हम लोग Q1 पे आते हैं, अगर हम लोग Q1 पे 0 इनपुट दे रहे हैं तो हमें वापस Q0 मिल रहा है, और अगर हम Q1 पे 1 इनपुट दे रहे हैं तो ये सेल्फ दिखा रहा है, मतलब Q1 पे अगर हम 1 इनपुट देते हैं तो हमें फिर Q1 मिल रहा है. Now we will see the types of final state automata. So basically there are two types of final state automata. First is deterministic finite state automata. हम लोग इसे DFA भी कहते हैं. And second one is non-deterministic finite state automata. इसे हम लोग NDFA भी कहते हैं. So deterministic finite state automata. Basically the finite state automata is called deterministic finite state automata if the machine is read an input string one symbol at a time. मतलब अगर हम लोग जितने भी हमारे स्टेट्स दिए गए हैं उन पे अगर हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं तो डिफरेंट इनपुट के लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है. जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं Q1 पे तो Q0 मिल रहा है, अगर हम 1 इनपुट देते हैं तो Q1 मिल रहा है, और अगर हम लोग Q1 पे देखें तो अगर हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं तो हमें Q2 मिल रहा है, अगर Q1 पे 1 इनपुट दे रहे हैं तो Q1 मिल रहा है. हमें मतलब अलग अलग इनपुट के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं. हम लोग डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं तो हमारी वैल्यूज़ भी डिफरेंट मिल रही हैं. तो ये हमारा होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, जिसे हम लोग DFA भी कहते हैं. नाउ वी विल सी द सेकेंड काइंड, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, जिसे हम लोग NDFA भी कहते हैं. The finite state automata
is called non-deterministic finite state automata if for any particular input symbol the machine can move to any combination of the state. That is कि हमने अगर किसी भी स्टेट पे कोई हम लोग सेम इनपुट के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रही हैं, जैसे कि हम लोग अगर क्यू नॉट पे 0 इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्यू नॉट मिल रहा है, और अगर हम लोग क्यू नॉट पे ही 0 इनपुट दे रहे हैं तो क्यू थ्री भी मिल रहा है हमें, मतलब 0 इनपुट के लिए हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, क्यू नॉट क्यू थ्री। मतलब 0 हमारा एक ही इनपुट है, उस पर हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, क्यू नॉट और क्यू थ्री। ये केस हमें एनडीएफए में देखने को मिलता है, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में। हियर इज अ नोट, एवरी डीएफए इज एनडीएफए बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। Here we will see one example of conversion of NDFA to DFA. हमने यहाँ पे नोट में देखा था कि DFA is NDFA but converse is not true, मतलब NDFA DFA नहीं हो सकता लेकिन DFA NDFA हो सकता है। Now here we will convert a NDFA into DFA। तो ये देखिए Q नॉट पे हमें 0 पे Q नॉट मिल रहा है और 1 पे Q1 मिल रहा है, और Q1 पे अगर हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं तो हमें Q1 मिल रहा है, और 0 इनपुट पे ही हमें Q2 भी मिल रहा है, मतलब एक ही इनपुट के लिए हमें दो दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, मतलब ये NDFA का केस है। इसकी हम लोग टेबल देख सकते हैं कि Q नॉट पे जब हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं तो Q नॉट मिल रहा है, Q नॉट पे अगर हम लोग 1 इनपुट दे रहे हैं तो Q1 मिल रहा है, ये हम लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं। और अब हम Q1 पे जब 0 इनपुट दे रहे हैं तो हमें Q1 भी मिल रहा है और Q2 भी मिल रहा है, और जब हम लोग Q1 पे 1 इनपुट दे रहे हैं तो हमें Q1 मिल रहा है, जब हम लोग Q1 पे 1 इनपुट दे रहे हैं तो हमें Q1 मिल रहा है, और Q2 पे जब हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं तो हमें फिर से Q2 मिल रहा है। यहाँ हम लोग टेबल से भी देख सकते हैं और डायग्राम से भी देख सकते हैं। और जब हम लोग Q2 पे 1 इनपुट दे रहे हैं तो हमें Q2 मिल रहा है और प्लस Q1 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे Q2 पे अगर हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं तो Q2 मिल रहा है, और अगर 1 इनपुट दे रहे हैं तो हमें Q1 भी मिल रहा है और Q2 भी मिल रहा है, मतलब एक ही इनपुट के लिए दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। ये हमारा NDFA का केस है। अब हम लोग इसे DFA में कैसे चेंज करेंगे? सो DFA के लिए पहले हम लोग इस टेबल को कंसीडर कर रहे हैं NDFA की, कि हम इसे DFA की टेबल में कैसे चेंज करते हैं। हमारे स्टेट्स हम यहाँ इनपुट से लेंगे, तो पहले हम लोग Q नॉट ले रहे हैं। तो जब हम लोगों ने Q नॉट लिया तो हम लोग देख सकते हैं Q नॉट पे हमें Q नॉट 0 इनपुट पे Q नॉट मिल रहा है और 1 इनपुट पे Q1 मिल रहा है, तो इसको एज इट इज़ नोट कर देंगे। अब हम Q नॉट तो ले ही चुके हैं, अब हम लोग Q1 लेंगे। तो Q1 के लिए हमारे पास Q1 Q2 वैल्यू आ रही थी 0 इनपुट के लिए, और 1 इनपुट के लिए Q1 आ रही थी, तो इसे भी हम लोग एज इट इज़ नोट कर रहे हैं। अब हम Q नॉट ले चुके हैं, Q1 ले चुके हैं, तो यहाँ से अब हमें Q1 और Q2 नहीं लिया है, तो अब हमें Q1, Q2 ले लेंगे। तो Q1 Q2 के लिए अब हम लोग देखेंगे कि 0 इनपुट पे हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही है। तो Q1 Q2 के लिए 0 इनपुट्स पे हमें Q1 Q2 मिल रहा है और Q2 मिल रहा है, मतलब हमें Q1 Q2 मिल रहा है इनपुट में। और फिर Q1 Q2 के लिए हम लोग 1 पे चेक करेंगे, Q1 Q2 के लिए हम लोग 1 पे चेक करेंगे, तो Q1 आ रहा है और Q1 Q2 आ रहा है, तो मतलब हमें 1 पे भी Q1 मिला और Q2 भी मिला। तो अगर हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो Q नॉट पे जब हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं तो हमें Q नॉट मिल रहा है, और जब Q नॉट पे 1 इनपुट दे रहे हैं तो Q1 मिल रहा है। अब Q1 पे जब हम लोग 1 इनपुट दे रहे हैं तो हमें Q1 मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और Q1 पे जब हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं तो हमें Q1 Q2 मिल रहा है। अब हम लोग Q1 Q2 की बात करें तो Q1 Q2 पे जब हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं तो Q1 Q2 मिल रहा है, और जब हम लोग 1 इनपुट भी दे रहे हैं तब भी Q1 Q2 मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग वैल्यूज़ मिल गई, तो अब हमारा NDFA DFA में कन्वर्ट हो गया। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन।